Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. Any responses on chat box or nothing? Sir, just there is only about the medium of English. There is no response. So I believe these kids are not very comfortable with WebEx. This is a webinar gem which we are using, and Okay. They have been using it prior to this? yes, sir. We have already conducted the seminars, power seminars on this platform. But आज लोगों का response इतना ठंडा क्यों है? Yes, sir. There may be the network issue that also the participants are very less, that 33. So just I am discussing with the HODs that they should push the student for the login. नहीं, login से ज़्यादा जो भी आए हैं ना, they need to participate. Yes, sir. Yes, sir. They need to speak up. Yes, sir. क्योंकि प्रेजेंटेशन तो हम कितना 10-15 मिनट में पढ़ लेंगे या मेल भी कर सकते हैं सबको. So shall I wait or shall I keep going ahead? I request to all participants that the session is interactive, and our speaker, sir, Mr. Bhimesh, wants that everybody can respond on the chat box or also in the form of voice. So, student, be attentive, and if face any problem, then they can write in the chat box also. And any queries also they can write in the chat box, or can speak, or can present it in the verbal form. Sir, you can start. Okay. Yeah. So this electricity usually comes from two sources. One is conventional source and other one is renewable source. The conventional sources are fossil fuels, basically coal, oil, natural gas. But who is getting impacted for this conventional power? Any response on this thing? Conventional power से किसको नुकसान हो रहा है? Environment को. Be it coal, be it oil, be it natural gas, we are trying to pollute environment, air pollution, water pollution, and soil pollution. So what is renewable energy? Renewable energy is basically the natural resource or source of energy that is not depleted by use, naturally replenished. अगर आप नाम को ही देखेंगे तो renewable, which is able to renew itself or which is able to generate itself again and again, like solar energy. If you will use sunlight, it is not that it will be depleted. The sun will again come out tomorrow again and we can use the energy again and again. Same is with wind, hydro, and other sources of renewable. So they are basically carbon neutral sources: sunlight, wind, rain, tides, wave, and geothermal heat. Nowadays, more than 2/3 of the worldwide newly installed electricity capacity was renewable, because governments also are trying to focus on clean energy and green energy. They do not want that we end up using all the resources which are in conventional form.
basically coal or oil or natural gas. At the national level also, more than 30 nations around the world have already renewable energy contributing more than 20% of their energy supplies. So there are some treaties, conventional forums are there. Then this climate change activists are there. They are forcing their organizations, their countries, their leadership to go into renewable energy. What are the major sources of renewable energy? Solar, wind, hydroelectric energy, municipal solid waste, biogas, hydrogen, tidal and geothermal. Anybody is having any questions on this? Students can write the question in the chat box also, or they can ask verbal in verbal mode also. So please mention the question in chat box. Okay, let's talk about the solar PV systems. Solar PV systems is solar photovoltaic systems. You might have seen them on rooftops, along the roadsides, solar PV street lights, then solar power plants, big plants in the fields, and you will be seeing them more often now. PV material and devices convert sunlight into electrical energy. A single PV device is known as a cell. It is nothing but a semiconductor which converts the sunlight into electricity. Solar cells that are strung together make a module, and when modules are connected together, they make a solar power system. Any response or any query on this thing? Have you guys seen solar power systems or solar plants nearby? Any response? Anything on the chat box? Sir, yes, sir. Yes, sir. Yeah, please. Also, sir, student visited the solar power plant also sometimes. Okay, which plant have they visited nearby? Students, anybody, you can write in chat box if you are not able to convey your message through your voice messages. Any rooftop system they might have seen nearby. यार हम प्रेजेंटेशन को तभी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जब हम उस पर डिस्कशंस करेंगे. Otherwise it will be great that we mail you guys और ये पढ़ तो आप लोग, and in fact we are not telling anything जो आपको YouTube पे या Google पे नहीं मिलेगा. Sir, also we have the solar panel system in our college. Okay, so great. Students' answer in the chat box is right that in our college also there. Okay. So, but why is it that they are not able to connect through voice? Sir, I have open, but don't know that why students don't want to connect with the voice.
but they are just responding in the chat box right now. ओके कोई एक दो लोग भी अगर बात करोगे तो यार थोड़ा सा इसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से बना सकते हैं, बिकॉज सी सोलर पैनल मैंने बता दिया आपको सोलर पैनल क्या है। Yes, अब sir. जब तक आपका क्यूरियोसिटी बाहर आएगा नहीं, जब तक आप उसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे, बिकॉज सोलर पैनल पे अगर मैं बात करने लगूं तो मैं 2 दिन बात कर सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इतना टेक्नोलॉजी, इतना इन डेप्थ लेवल तक चीजें आ चुकी हैं अपने कंट्री में भी, बट वो सब थ्योरेटिकल हो जाएगा। आई वांट टू आस्क कि भैया आप लोगों के मन में चल क्या रहा है विद सोलर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज लग रही हैं? Sir, students wrote in the chat box that after some time solar panel material is not working. After some time solar panel material is not working. ओके सी सोलर पैनल क्या है बेसिकली, एज दिस स्लाइड टेल्स, इट इज एन एरे ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स किस चीज के बने हुए हैं? सिलिकॉन के। नाउ दे आर कनेक्टेड। अगर बीच में कोई एक कनेक्शन भी हमारा वीक हो जाता है या खराब हो जाता है, विच कैन बी बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स, किसी पक्षी ने उसको खराब कर दिया, या जब हमने उसको सफाई किया तब वो डिसरप्ट हो गया है, या वो टूट गया है, या किसी ने पत्थर उस पर डाल दिया है, तो हमारे पैनल का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। सो Yes, कितना टाइम के बाद उनको ये प्रॉब्लम फेस हुआ है? जो भी स्टूडेंट है प्लीज कम आउट इन ओपन, हम डिस्कस करेंगे इसको। Sparsh Gupta, you wrote that after some time solar panel material is not working. So you can give the idea about the time after that the solar First, Sparsh, आपने कहाँ पे लगाया बच्चे? घर पे लगा रखा है, और यू हैव सीन इट इन द फील्ड्स और स्ट्रीट लाइट? कहाँ पे देखा ये कि इट इज नॉट वर्किंग? देखिए सोलर पैनल के वर्किंग का पूरा प्रोसेस सिंपल है। इट विल टेक सनलाइट, द सेमीकंडक्टर्स विल यूज दिस सनलाइट एंड दे विल कन्वर्ट दिस एनर्जी, फोटोवोल्टिक एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसके लिए 3-4 जो बेसिक चीजें हैं, वन, इट शुड बी वेरी क्लीन, ताकि ये फुल एफिशिएंसी पे काम कर सके। अगर उसके ऊपर धूल मिट्टी जम गया है, देन ऑल्सो द सोलर पैनल एफिशिएंसी गोज डाउन। सेकेंड इज, जब हमने अगर उसको मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं दिया है, तो इफ देयर आर सम डिसरप्शंस इन द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, जो सेल्स को हमने कनेक्ट किया है, इफ यू सी द सेकेंड पिक्चर इन दिस सोलर मॉड्यूल, तो दीज सेल्स आर इंटरकनेक्टेड। सो अगर वो कनेक्शन वीक है, देन ऑल्सो माई एफिशिएंसी विल गो डाउन। इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है क्या स्पर्श? What do you think about your issue? Sparsh, you can ask. You can write in chat box also. आपको इनमें से कोई इशू लग रहा है क्या, where you are mentioning that the panel efficiency is going down with time? वो पैनल का धुलाई सफाई सब प्रॉपर है? Sparsh, I have admitted you. Sparsh, please try to speak. I have admitted you. You are unmute from my side. I think there is some technical glitch here. It's not that the kid is writing on the chat box, but he's not able to convey through voice message. Okay, not an issue. Sir, just he mentioned the time, sir, after 6 months. After 6 months, then 100% it is maintenance issue. Okay, just one question to Spurs and all the students. At what angle and in which direction solar will give maximum efficiency? It is to Spurs also and it is to everybody else also.
सोलर पैनल को किस एंगल पे रखना होगा और किस डायरेक्शन में रखना होगा जब ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा. I'll wait for 2 minutes. I'll wait for your responses in chat box. I'll repeat. सोलर पैनल को किस एंगल पे और किस डायरेक्शन में रखना होगा ताकि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे. Sir, there are different answers. Students write 45 degree, 90 degree, or in the south direction, or in the sunlight direction. Very good. So whosoever is written 45 degree and in south direction is absolutely correct. Okay. The panel should be at 45 degree and it should be in southern direction. It should be facing south because for maximum time the sun is in south direction. Okay. So if we follow these golden rules that it is facing sun, it is kept in 45 degree angle, and it is maintained properly, it is clean, and the connections are working perfectly fine between the cells, then there is no chance that this efficiency will go down. Because in Rajasthan only and in Gujarat only, there are solar PV power plants which are more than 15 years old and they are still generating power. Okay, so we will move ahead. Okay, in chat box again 30 seconds. Who are the major solar PV suppliers, panel suppliers? Or let me go to the next slide. Ryzen Energy, Waaree, Gensign, Vikram Solar, Adani and Trina. They are the biggest suppliers of solar PV panels. Out of that, Waaree, Vikram Solar and Adani are Indian manufacturers. Okay, who is your neighbor manufacturing solar PV panels? इसका आंसर अभी चैट बॉक्स पे चाहिए. जयपुर में कौन कंपनी है जो सोलर पीवी पैनल्स बनाते हैं? 60 seconds. We need your answers. Students, please write fast in chat box. No issues. Let them think and write. Just Yes. don't Google it, please. So Vikram Solar and Adani. Vikram and Adani are making in India, but Vikram Solar is in Calcutta and Adani is in Gujarat. Their manufacturing capacities are in Gujarat. मैं पूछ रहा हूँ जयपुर में आपके नेबरहुड में कौन है? जयपुर में कौन कंपनी बना रहा है? Sir, Waaree. Students, No. not Waaree. No, Waaree also is not there. I am specifically asking जयपुर में कौन बना रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जहां पे पैनल्स मैन्युफैक्चर होते हैं. It is a government company. Sir, Trina. No, not even Trina. Another hint, it is a government company. It is in Jaipur and they are making solar PV panels. Sir, Reel, Jet and Shine. Excellent. Reel. Reel. Who told Reel? One of our student, Manoj Kumar, sir, told about the Reel. Okay. So Manoj ji, you are perfectly correct. It is Reel, Rajasthan Electronics and Instruments Limited. इनका बहुत ही शानदार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. इट इज वेरी नियर टू योर एयरपोर्ट. Yes. ओके, तो इनको मिस्टर पाटीदार, आई विल कनेक्ट यू विद समबडी एट रील. जो आपका कोई भी स्टूडेंट अगर वहां पे जाके देखना भी चाहेगा ना, Yes, sir. हाउ दीज पैनल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, सो आई कैन असिस्ट यू गाइज एंड आई कैन कनेक्ट यू गाइज देयर. ये वहां पे जाके देख सकते हैं. बेसिकली इंडिया में क्या होता है कि हम चाइना से या जर्मनी से सोलर सेल्स इंपोर्ट करते हैं. Yes, sir. और इंपोर्ट करने के बाद हमारा ग्लास इंडस्ट्री यहाँ पे डिसेंट है, तो वो फिर हम असेंबलिंग करते हैं यहाँ पे. सो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, वारी, अडानी, विक्रम सोलर,
CEL, Central Electronics Limited, BEL, Bharat Electronics Limited, all these guys have their assembling lines here. Okay. ठीक है. But with this Atmanirbhar Bharat Abhiyan, we are also trying to make our own cells. तो हमारा दूसरे कंट्रीज पे इन टर्म्स ऑफ सोलर प्रोडक्शन डिपेंडेंस कम हो जाएगा. Right. Good. Some numbers around renewable energy. As on 27th November 2020, 38% of India's installed capacity is from renewable sources. हमारा total installed capacity as on November 2020 was 373 gigawatt, and out of which 136 gigawatt is coming from renewable sources. So India is making steady and very good progress on installation of renewable capacity. Out of total installed capacity, 55% is coal, which gradually is coming down. NTPC is the biggest player in coal energy, and they are now shutting down their power plants, which are based on coal, and they are also moving to renewable energy, into solar mainly. Renewable is having more than 1/3 contribution. Gas is around 7%, and nuclear is, though nuclear has enormous opportunity and potential, but it has very much challenges also, so it is restricted to 2% only. The upcoming maximum contribution, as discussed in the previous slide also, is coming from solar PV. अच्छा, सोलर पीवी में मेरे को ये एक बार स्टूडेंट्स और बताएंगे. आई विल टेक 1 minute अगेन. व्हाट आर द चैलेंजेस विद सोलर पीवी? एक तो अभी स्पर्श ने बताया कि उसका एफिशिएंसी कम हो गया है, बट दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस इश्यूज. अदरवाइज 15-20 साल से प्लांट्स जनरेट नहीं कर रहे होते, और अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगा कि जनरेशन इश्यूज नहीं आ सकते. सो उसके अलावा सोलर पीवी का और क्या शॉर्टकमिंग मानते हैं वो? Sir, weather conditions. Weather conditions, perfect, very good. Weather conditions, And basically if there are clouds तो नहीं आ पाएगा. So now the And students it are is able to not speak up. used in all seasons. Hello, please introduce yourself. Sir, I am Jayant Kumar Vijay. जयंत जी, हाँ. वेदर कंडीशंस एक्सीलेंट यार, वेरी गुड. वेदर कंडीशंस क्या होता है? बादल आ गए, बारिश आ रही है, तो सोलर जनरेट नहीं करेगा. सो इट इज And sir, इंटरमिटेंट in पावर. rainy seasons, it रेनी doesn't सीजन work. अगेन, हाँ. सो हाँ, इंटरमिटेंट पावर हो गया. दूसरा कोई वजह कि क्यों सोलर में थोड़ा बहुत चैलेंज है? It is very costly, sir. कोस्ट तो मैं कहूंगा कि बहुत हद तक कम हो गई है, बट यस, स्टोरेज इज वेरी कॉस्टली. आपने पावर जनरेट किया सुबह 9-10 बजे से लेके 3-4 बजे तक, इस बीच में पावर यूज कर नहीं रहे हैं. पावर कब यूज करेंगे आप? यूजुअली रात को. तो आपको स्टोरेज चाहिए, तो स्टोरेज Yes, इज कॉस्टली. एग्री, वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? प्लीज स्पीक अप. आप तो बिल्कुल यार इतना सब कुछ तो जानते हैं. और इसके अलावा क्यों स्टोरेज करना पड़ रहा है उसको? अच्छा, कोई और? हेलो again. So It is student wrote that uncertainty of sunlight, snowfall, or major challenge would be weather. weather. Okay. कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो इन सब चीजों को कैटर कर रहा है, जो ना तो मौसम पे डिपेंडेंट है, ना ही उसमें स्टोरेज का जरूरत है. sir, wind energy. Excellent. Wind energy can generate 24/7 provided there is wind 24/7, है ना? Yes, sir. और इसके अलावा विंड कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ, बट विंड स्पीड क्या है ना, 24 घंटे एक जैसा नहीं रहता, या सारा साल एक जैसा नहीं रहता. अगर आप राजस्थान से हैं तो आप समझ पाएंगे कि विंड गर्मी में विंड स्पीड्स बढ़ जाते हैं और सर्दी में थोड़ा कम रहते हैं. इसके अलावा और कोई सोर्स? These are renewable energy sources: solar, wind, hydro, municipal solid waste, biogas. इनमें से कौन ऐसा है जो 24/7 जनरेट करता है?
Sir, hydroelectric can also generate 24/7. वेरी गुड. हाइड्रोइलेक्ट्रिक कैन ऑल्सो जनरेट. सबसे बढ़िया सोर्स इनफैक्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ही माना गया था अभी तक, क्योंकि वो आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देता है. But sir, hydrogen is very also with fuel of the future. हाइड्रोजन ऑल्सो, बट हाइड्रो के साथ में एक और चैलेंज है. वो चैलेंज क्या है? हाइड्रो का ब्यूटी तो ये है कि ये 24 घंटे जनरेट करता है, बट हाइड्रो के साथ प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रो यूजुअली जनरेट होता है हमारा पहाड़ों में और कंजम्पशन होता है शहरों में. Yes sir, ट्रांसपोर्ट की थोड़ी दिक्कत आती है. वेरी गुड. जो ट्रांसमिशन का जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है. एक तो ट्रांसमिशन में कॉस्ट कितना लगता है कि मैं हिमाचल या उत्तराखंड से जयपुर तक, दिल्ली तक लाइन बिछाऊंगा. दूसरा ट्रांसमिशन लॉसेज. ये तो समझते होंगे ट्रांसमिशन लॉसेज आप. Yes sir. वो एक मेजर इशू है. सो अभी अगर इन सब में देखा जाए तो अब कौन सा, अब ये 5-6 टेक्नोलॉजीज में हाइड्रोजन, टाइडल और जियोथर्मल पे अभी तक बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है. 2 हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट ने बना दिया है, लेकिन अगर मैं पहले 5 में बात करूं तो हाइड्रो का कौन सा ऐसा रिप्लेसमेंट हो सकता है विच कैन गिव यू 24/7 पावर एंड विच इज नॉट बायोगैस और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. यस, हमारे शहरों की तरफ पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, उन सबको जला के जो पावर जनरेट होता है वो 24/7. सॉलिड वेस्ट से सर पोल्यूशन भी तो होगा. नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाता हूँ. पोल्यूशन, बिल्कुल आपका पॉइंट सही है. अगर हम उसको ऐसी ओपन में जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, ठीक है, बट उसको जलाने के भी तरीके होते हैं. देयर आर सिस्टम्स इंस्टॉल्ड कि आप सल्फर गैसेस को कैसे उसमें से रिमूव करेंगे, कार्बन गैसेस को कैसे रिमूव करेंगे. सो आई विल शो यू ए वीडियो. आई विल briefly talk about IREDA. IREDA is Indian Renewable Energy Development Agency. So our mandate is to develop renewable energy infrastructure in the country. अब वो कैसे करते हैं? We are a non-banking financial corporation. हम लोग solar, wind, hydrogen, municipal solid waste, biogas projects को लोन करते हैं. ठीक है. It is a 100% government-owned company. We are financing renewable energy and energy efficiency projects also. राजस्थान में हमने काफी renewable energy और energy efficiency projects किए हैं. अभी तक क्यूमुलेटिवली हम लोग 91,207 करोड़ रुपए तक का जनरेशन कैपेसिटी फंड कर चुके हैं. एंड सिंस इरेडा's core business is financing renewable energy, हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं. सो we are having a positive net impact on environment, ecosystem, resources and people. पॉजिटिव नेट इम्पैक्ट मतलब अगर हमारे कंपनी में हम एसी, बिजली यूज करके एंड इफ वी आर लिविंग एनी कार्बन फुटप्रिंट्स, तो उससे कहीं ज्यादा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करके उसको ऑफसेट कर दे रहे हैं. अभी मेरे को बताओ, रिन्यूएबल एनर्जी को एनवायरनमेंट से अगर कनेक्ट करेंगे तो वी विल हैव 1 मिनट हियर. आप लोग बताइए कि क्या क्या फायदे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट. सर नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीशन रोका जा सकता है. एक्सीलेंट. और सर पोल्यूशन फ्री होगा. वेरी गुड. 2 हो गए. पोल्यूशन हो गया. किस तरह का पोल्यूशन रोक सकते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह. कौन से मीडियम्स एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं? सर जैसे कंबशन का कहीं कहीं पे कंबशन से भी, कोल वगैरह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. होता है. बिल्कुल. तो सर पोल्यूशन होता है उससे. तो रिन्यूएबल एनर्जी आरई का सबसे पहला फायदा है दैट इट प्रोड्यूसेस नो ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस समझते हैं? द गैसेस व्हिच आर कॉजिंग डिप्लीशन ओजोन लेयर. ओके. रिड्यूसेस वाटर यूजेज. अगर आप कोल या किसी भी तरह के प्लांट्स करते हैं तो आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वाटर यूजेज चाहिए. कोल को जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू ट्रक्स तो उसको गीला करके ले जाते हैं, सो उसमें बहुत वाटर चाहिए. कोलरीज में बहुत वाटर चाहिए. हेल्प्स फाइट क्लाइमेट चेंज, reduces some time of
एयर पोल्यूशन, डाइवर्सिफाइंग एनर्जी सप्लाईज। सो रिन्यूएबल से क्या हो रहा है, सोलर आपने अपने घर पे लगाया, अभी आपको ग्रिड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, ना आपको कोल या थर्मल पावर का जरूरत है, ना आपको हाइड्रो पावर का जरूरत है। ओके, सो एंड इट सर इज डाइवर्सिफाइंग। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो गया, बिल्कुल। reduces soil pollution as no chemical effluents are released. ओके, सोलर से, विंड से, हाइड्रोजन से, इनसे कोई केमिकल एफ्लुएंट्स नहीं निकलेंगे। एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट से आपका एयर, वाटर एंड सॉइल तीनों पोल्यूशन कम हो जाते हैं। अगर कूड़ा पड़ा रहता है तो इट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो एंड सब्सिक्वेंटली वाटर टेबल में भी जाता है। एग्री और नॉट? यस सर। जयंत आप है ना? यस सर। सो ओनली जयंत इज स्पीकिंग। पूरा 34 लोग में सिर्फ एक ही आदमी की आवाज सुनाई दे रही है। सर 135 है सर राइट नाउ, 138। 138 में से एक ही बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आ पा रहा है कि वो मेरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बाकी लोग I'd like to hear from anybody else also now. पाटीदार साहब, आप नाम से बुला सकते हैं बीच बीच में से रैंडमली बच्चों को। यस सर, यस सर, यस सर। अमन प्रजापति, अमन, नितिन, नितिन शर्मा, यू कैन आस्क। बच्चे, ये कॉलेज वाले इंटरनल में काउंट करेंगे जितने क्वेश्चन आप पूछोगे, उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे आपको। यस सर, वी आर मॉनिटरिंग द अटेंडेंस आल्सो एंड नहीं तो अभी देखो, जयंत के तो 100% इंटरनल मैंने रेकमेंड कर दिए हैं। यस सर। एंड स्पर्स ऑल्सो, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछे हैं। यस सर। Rajesh Divakar, Rajesh, I have given you the option. I unmuted you from my side. Rajesh, you can ask. इलेक्ट्रिकल Sir, one student wrote the question, sir, how can we store the generated electricity? हाउ कैन वी स्टोर? The generated electricity. जैसे हम अपना बैटरीज में स्टोर करते हैं, वही एक मात्र। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, अब उसको कंज्यूम करने के दो ही तरीके हैं। एक तो आप उसको उसी टाइम यूज कर लो, दूसरा आप उसको स्टोर कर लो। स्टोर कैसे करते हैं? बैटरी के थ्रू। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर जो रहता है, इन्वर्टर बैटरी क्या करता है, उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है, एंड एज एंड व्हेन वी रिक्वायर, तो वो एनर्जी हम उसमें से यूज कर लेते हैं। सो इन्वर्टर को, बैटरी को आप एनर्जी बैंक भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से हम अपना पैसा बैंक में स्टोर करते हैं, ऐसे ही हम अपनी एनर्जी को भी स्टोर कर लेते हैं। एनीबडी एल्स? अब जो दो पूछेंगे, मैं पाटीदार साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी इंटरनल में 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा दें। Okay, sir. Nitin, I have given you the option of speak, but don't know why you are not able. चल, नो इश्यूज, लेट्स मूव अहेड। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अभी मेरे को जो स्पर्श ने पूछा था ना कि सोलर पैनल का एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाता है, जस्ट सी दिस वीडियो, और उसके बाद मेरे को लगता है कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इट इज विजिबल एंड ऑडिबल ना पाटीदार साहब? Yes, sir. Yes, sir. Sir, it's visible, not audible.
Dinesh sir, the video is visible but not audible, sir. Not audible? Yes, sir. Not audible. But it is visible ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं. लेट्स सी दिस ओनली बिकॉज मोर और लेस आपको क्लैरिटी तो आ ही गया होगा ये क्या है. Yes, sir. ओके सो मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूं फिलहाल. नाउ आई एम आस्किंग स्पर्श. स्पर्श कैन यू स्पीक अप? Sparsh, are you there? दिल्ली मेट्रो को जो पावर सप्लाई है दैट इज फ्रॉम रेवा मध्य प्रदेश प्लांट. सो अगर सोलर पैनल का एफिशिएंसी इस तरह से 4-6 महीने में कम हो जाएगा तो क्या दिल्ली मेट्रो रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. इट इज ए 750 मेगावाट प्लांट जिसका 1/3 इज गोइंग टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. बाकी सब दिल्ली मेट्रो को उन्होंने बेचा है. ठीक है. एंड हाउ मच इम्पैक्ट इट इज हैविंग ऑन एनवायरनमेंट इज 15.7 lakhs tons of CO2 reduced every year. अब सोचिए अगर यही थर्मल पावर यूज कर रहे होते तो 15.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एनवायरनमेंट में जाता. 2.06 करोड़ ट्रीज सेव्ड. 2 करोड़ ट्रीज कितना बड़ा जंगल होगा मान लीजिए आप. ठीक है. अभी मैं आता हूं जयंत के क्वेश्चन पे. जयंत आपने पूछा था कि अगर हम कंबशन करेंगे तो इट विल क्रिएट दिस थिंग पोल्यूशन. इसका ऑडियो आ रहा है क्या आपको? No, sir. यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा था अभी. थोड़ा आया था लेकिन सर स्टार्ट अगेन. सर इंक्रीज द वॉल्यूम सर. ऑडिबल? No, sir. Not audible. ओके आई विल कीप एक्सप्लेनिंग. Okay. ये दिल्ली में गाजीपुर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट है, डंपिंग ग्राउंड. ठीक है. ये ऑलमोस्ट 10 मंजिला इमारत के जितना ऊंचा हो गया था. इसके अंदर गैसेस बनते हैं. वो गैसेस इतने ज्यादा इनफ्लेमेबल हैं कि इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे जयपुर के आसपास भी कहीं कूड़े का ढेर है तो उस पर आग लग जाता है. मीथेन बेसिकली इसके अंदर बनता है. सो ILNFS ने क्या किया है, एक प्लांट बनाया है विच इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी. सो वो पहले इस वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं. दिस इज हाउ दे सेग्रीगेट. एक कन्वेयर बेल्ट के जैसे उनका चलता है जहां पे कि वो प्लास्टिक और ईंटा पत्थर सब उसमें से निकाल देंगे. देन इट गोज इनटू कंबशन. कैन यू गाइस सी दिस वीडियो? ये सेग्रीगेशन के बाद ये इनका बॉयलर है. इसके अंदर इन्होंने इसको कंबशन में डाल दिया है, ये जला दिया है. ठीक है. Now these guys, this is the first Euro standard non-polluting power plant. अब इनके पास इसमें इतने तरह के रिसोर्सेज हैं कि वो हर तरीके की गैस को इसमें से एमिशन कम कर देते हैं. ठीक है. I'll share these links. ये आप अपने आप से जब वीडियोस देखेंगे ना, then you will realize कि टेक्नोलॉजी कितना इम्प्रूव कर चुका है. ठीक है पाटीदार जी, मैं ये लिंक्स भेज दूंगा. Yes, sir. Yes, sir. ये आप इनके साथ शेयर करना. तो इनके दोनों क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आए हैं आज इन बच्चों से,
एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू फोरसी इट कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वो दोनों क्वेश्चंस के लिए हमारे पास वीडियोस हैं. पहला ये कि क्या सोलर पावर का एफिशिएंसी कम हो सकता है, अगर एफिशिएंसी कम होगा तो हाउ विल वी बी एबल टू रन अनइंटरप्टेड मेट्रो सर्विसेज, या अगर कंबशन से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो हम क्यों कंबशन करें. अब कंबशन पे भी नई टेक्नोलॉजीज हैं. अगर हम खुले में उसको जला देंगे तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में सारी गैसेस लीक हो जाएंगी. बट देयर आर नाउ सिस्टम्स इन प्लेस. सेमी वेट रिएक्टर है, वो पानी के थ्रू गैसेस जाएंगे तो बहुत सारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है. देन देयर आर अदर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज, अदर फिल्टर्स, जिससे कि हम गैसेस को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देते हैं. ठीक है, दीज आर CEMS पैरामीटर्स. अगर आप पोल्यूशन का बात करेंगे ना, आई जस्ट शो यू. ये देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, सबकी मॉनिटरिंग होती है. वहां पे अंदर ही पैनल्स लगे रहते हैं. दे कीप रिड्यूसिंग इट टिल द टाइम इट इज सेफ. जयंत, यस सर. ये वीडियो आप जरूर ढूंढना. आप वैसे भी YouTube पे जाएंगे और आप गाजीपुर ILNFS प्लांट डालेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा. ठीक है, यस सर, इसमें सभी गैसेस को सर अलग कर लिया गया है. सभी गैसेस को इसमें से प्यूरिफाई कर देते हैं और हमारे पास बचता है सिर्फ एनर्जी. ठीक है, सर प्लास्टिक वेस्ट का क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक वेस्ट को यूज करने के बहुत सारे अलग तरीके हैं. प्लास्टिक डिपेंड करता है आपके पास किस तरह का है. इज इट बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल. सारी प्लास्टिक तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना सर. हाँ, सारे नहीं है तो उसको प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको आप रिसाइकिल करो, रीयूज करो. वो मैं बताऊंगा अभी आपको. माय नेक्स्ट स्लाइड इज डोंट वेस्ट द वेस्ट. ठीक है, अभी जो आज के दिन, जैसे आपने पहले से ही पूछ लिया कि प्लास्टिक, अभी मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि मैं एटलीस्ट आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा हूं थ्रू दिस प्रेजेंटेशन ओनली. फर्स्ट फिलोसफी इज रिड्यूस. आप प्लास्टिक का यूज ही कम कीजिए. ठीक है, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ प्रोमोटिंग दिस फंडा कि आप प्लास्टिक को कम यूज कीजिए. आपने प्लास्टिक यूज कर भी लिया है तो सेकंड स्टेप इज, आप लोग बताइए, सेकंड स्टेप इज रीयूज एंड रिसाइकिल. रीयूज. अब आपने रीयूज भी कर लिया है, फिर आपने रिसाइकिल कर दिया. प्लास्टिक को आपने तोड़ के मरोड़ के उसको बॉटल्स बनाया, पॉलिथिन्स को यूज करके, या बॉटल्स को यूज करके आपने कोई चेयर्स बनाए, चेयर्स को यूज करके आपने कोई और प्लास्टिक का सिस्टम्स बनाए. अभी आपने उसको रीयूज भी कर लिया, फिर रिसाइकिल भी कर लिया. देन ऑल्सो देयर इज सम प्लास्टिक. सो उसको फिर फर्दर आप मॉडिफाई कीजिए, अलग शेप्स दीजिए. ठीक है, बट द वेस्ट विच इज नॉट प्लास्टिक, उसको क्या करना है? उसको उससे आपको एनर्जी बनाना, वेस्ट प्लांट में एनर्जी बनाने के लिए, उससे आपको एनर्जी बनाना है. ग्रेट. अभी थोड़ा फन टाइम, एक क्विज है. ठीक है, I challenge you to name one thing that has done more for the environment than Greta Thunberg. Greta Thunberg जानते हैं आप लोग? यस सर. कौन है? सर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट. एनवायरमेंट एक्टिविस्ट. और कोई लोग को भी पता है? तो अभी इस पर 2 मिनट लेंगे हम, पाटीदार साहब. यस सर. लेट रेस्पॉन्सेज कम थ्रू चैट बॉक्स ऑल्सो. ओके सर. देखते हैं कितने लोग को पता है कि ग्रेटा थनबर्ग से ज्यादा पिछले 1 साल में, आई एम सेइंग पिछले 1 साल में एनवायरनमेंट किसने ज्यादा किया. आंसर. You have your answer, so keep holding it till the time others post it. कोई रेस्पॉन्सेज आए?
Response only, sir. Yes, sir. No, sir. Nothing there in the chat, sir. Corona. Yes, sir. My answer is the same. Coronavirus. कोरोना वायरस से क्या हुआ जयंत? Sir, coronavirus said the number of vehicles on the road has almost zero. Very good. इंडस्ट्री And बंद हो गया, very कोल less. प्लांट्स बंद हो Industries गए. are closed now. And the tourists which are spreading dust wastage everywhere stopped also. मतलब आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा कि स्काईज बिल्कुल क्लियर थे लास्ट अप्रैल Yes, मई sir. में, अगर आप देखो. ठीक है. और एक और चीज आप लोग, सिंस यू गाइस आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, लेट मी गिव दिस टू यू. आप इसको जाके सर्च करना. इफ यू विल सी एवरेज टेम्परेचर्स आल्सो ना, ओके, ईयरली एवरेज टेम्परेचर्स का चार्ट देखना. दिस इज माय गट फील, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट माय गट फील सेज last year the average temperature in April, May and June should have been at least 1 to 2 notch degree less than the previous years. Yes, sir. Average temperatures has decreased significantly. Decreased ना? देखो, Yes, I sir. have not seen it. मेरे को ये नहीं पता कि उसका डिग्री कितना है, but ये जरूर हुआ होगा because your major sources of global warming were shut down. Yes, sir. Okay, how many of you are aware about sustainable development goals? I'll just wrap it up. I'll not take long. Sustainable development goals कितने लोग को पता है? Yes, sir. Governments all across the world are going for sustainable development in their country. Very good. अभी जयंत के अलावा कोई और दो लोग का आवाज चाहिए. Students, if not audible, then write in the chat box. Without diminishing resources to save for future generation. Also, green building also comes under sustainable development goal. Yes. So हमारे जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके ये डिसाइड किया है कि ये अर्थ पे अगर हमें सस्टेन करना है तो वी नीड टू नाउ एक्ट, एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड 17 गोल्स. सब कंट्रीज को टारगेट मिले हैं कि ये 17 गोल्स अचीव करने हैं. आउट ऑफ दैट, गोल नंबर 7 इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. वो कहाँ से आएगा? इट कैन कम ओनली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज. अगर मैं राजस्थान के एक गांव में बात करूं तो बहुत ज्यादा उनके पास काउ डंग वेस्ट या बायोगैस वेस्ट हो सकता है, तो वो उसको यूज करके अपनी एनर्जी नीड्स पूरे कर सकते हैं. सोलर पीवी सिस्टम्स कैन बी इंस्टॉल्ड. ओके. गोल नंबर 13 इज क्लाइमेट एक्शन. Students, please mute yourself. There another voice is coming out. इससे ये एस्टेब्लिश होता है कि उनका वो माइक तो ठीक काम कर रहा है, जस्ट बोल ही नहीं रहे हैं लोग. Yes, sir. ठीक है. एंड 11th गोल इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. अगर हमारे पास एनर्जी नीड्स इन ए सस्टेनेबल वे पूरा हो रहे हैं, हमारा क्लाइमेट बेटर है, ठीक है, तो हमारी सिटीज एंड कम्युनिटीज अपने आप ही सस्टेनेबल हो जाएंगे. सो ऑल दिस इज इंटर रिलेटेड. ओके, अभी मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए. तो अब जितना भी आपने सुना, बी इट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, बी इट ऑन क्लाइमेट चेंज, बी इट ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इसमें कितने तरह के जॉब्स हो सकते हैं आपके लिए और कितने तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं. So jobs can be based on the resources plants and the manufacturing plants, electricity producing plants. बिल्कुल. अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जयंत आपने कौन सा इंजीनियरिंग किया है? So I'm CSE. कंप्यूटर साइंस. Yes, sir. ब्रिलियंट यार, आपको फिर भी इतना वो है इंटरेस्ट इसमें.
Sir, I read about these things a lot. Great. बट बाकी इलेक्ट्रिकल वाले कोई लोग नहीं बोल रहे हैं, जबकि ये तो टॉपिक इज मोस्ट रेलेवेंट टू इलेक्ट्रिकल। एंड सीएससी में भी सिर्फ जयंत ही बात कर रहे हैं, बाकी कोई लोग नहीं। Okay. In terms of jobs, I'll see renewable energy engineering jobs. Okay, आप solar power plants पे, wind turbine plants पे, hydroelectric plants पे, there are engineering jobs. Then there are consultancy jobs also. उन जो भी आदमी प्लांट लगाता है, they will go for loans. Loans के लिए उनको चाहिए project reports. So you guys can develop project reports also. Accounting and finance jobs in renewable energy companies. Environment officers के जॉब निकलते हैं in both government sector as well as private sector. Sustainable development goals professional, ये आजकल बहुत इन चीज है, ठीक है। Most of the big universities, Oxford या Cambridge, they are offering courses in sustainable development goals. Sustainability reporting jobs, कि कौन ऑर्गेनाइजेशन कितना ज्यादा सस्टेनेबल है, हाउ मच दे आर एबल टू ऑफसेट देयर कार्बन फुटप्रिंट्स, इस चीज के भी जॉब्स हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स एंड एनजीओज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन फील्ड्स में, क्लाइमेट चेंज में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दे आर गुड पे मास्टर्स ऑल्सो, तो वहां पे भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं मेरे को अपना ही कुछ छोटा मोटा उद्योग खोलना है, तो जरूरी नहीं आप जॉब में जाएं। रूफटॉप सोलर पीवी इंस्टॉलेशन बिजनेस, ठीक है, आप लोगों को रूफटॉप लगा के दे सकते हैं, उनके घर के छतों पे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट का, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। बायोगैस प्लांट्स इंस्टॉलेशन बिजनेस। बायोमैन्योर बिजनेस, बायोमैन्योर क्या होता है? बायोगैस प्लांट से जो वेस्ट निकलता है उस फर्टिलाइजर बनाना, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। सो वो बिजनेस भी हो सकता है। some 4-5 people from Hisar Agriculture University have started their biomanure business, and वो आपको YouTube पे, Google पे या Your Story वगैरह पे उनका सक्सेस स्टोरी मिलेगा। They are doing excellent, ठीक है। अभी आप अगर जयपुर में बैठे हैं, जयपुर में हर कोई अपने घर में पेड़ पौधे लगा के बैठा है ना, गमला वगैरह तो सब रखते हैं। दे ऑल नीड बायोमैन्योर, ठीक है। जयपुर के आसपास में बहुत सारे नर्सरीज होंगे, दे ऑल नीड बायोमैन्योर। आप जयपुर की सिटी से बाहर निकल जाइए, रूरल में जाते ही अब बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे फार्मिंग एक्टिविटीज में जा रहे हैं, है ना। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, सो वो उसमें भी आपके बायोमैन्योर्स यूज होते हैं। ओके, देन कंसल्टेंसी बिजनेस, अपना कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंसी, दिस इज ऑल्सो इन थिंग। कोई भी नया यूनिट लगता है, कोई प्लांट लगता है, कोई ईंट का भट्टा लगता है, सो दे नीड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, तो उन सब के लिए जो रिपोर्ट लिखते हैं, दे आर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसल्टेंट्स। आई एम डन, थैंक यू। अगर आप लोग को मेरे से कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Friends, you can ask the question through the chat box. For that, I have given you 1 minute. Then you can write the question in the chat box. Sir, there are a lot of thanks message for your presentation from the student side, but no question till yet. Okay. Thank you very much, everybody. Yes, sir. Thank you. So I think, sir, just a minute. I think there are no so much question. Okay.
Sir, just a one question. Sir, please tell us about Great Thunberg. ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा Yeah. थनबर्ग एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है, छोटी सी बच्ची है, ठीक है. फ्रॉम हर स्कूल डेज ओनली सी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट एनवायरनमेंट. और उन्होंने क्या किया, सी वेंट टू जो उनका कंट्री का संसद के जैसे आप कह लीजिए पार्लियामेंट हाउस, उन्होंने हर फ्राइडे को जाके उस संसद पे जाके धरना देना शुरू किया, ठीक है. ओनली ए सिंगल किड, शी वाज इन 8th और 9th क्लास एट दैट टाइम. अभी तो हो गए उस बात को 7-8 साल. एंड नाउ शी इज रिनाउंड फेस इन एनवायरमेंटल एक्टिविज्म. तो उन्होंने हर फ्राइडे को जाके वहां पे धरना देना शुरू किया. एंड शी वाज डिमांडिंग फ्रॉम द पॉलिटिशियंस देयर कि आप लोग ने तो अपने लाइफ में सब कुछ यूज कर लिया, कोल यूज किया, बायोगैस, नेचुरल गैस यूज किया, ऑयल्स यूज किया, एंड यू हैव यूज्ड द गुड एनवायरनमेंट ऑल्सो. अब आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या पास कर रहे हैं? पोल्यूशन, डिप्लीटेड रिसोर्सेज. सो ये मुद्दे उन्होंने उठाए, ठीक है. नाउ सी इज ए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट. ग्रेटा थनबर्ग को देख के एक दो यहाँ पे भी अपने कंट्री में भी बहुत अच्छे एक्टिविस्ट्स हैं, दोज हु आर स्टूडेंट्स ओनली. आपको एक्टिविज्म के लिए जरूरी नहीं है कि आप जब रिटायर हो गए या आपने एनजीओ खोल लिया तो ही आप करेंगे. इन स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो यू कैन मेक ए चेंज. बाकी ग्रेटा थनबर्ग को जैसे ही आप यूट्यूब पे डालेंगे, आपको मेरे ख्याल से लाखों वीडियो मिल जाएंगे. Sir, there is another question that renewable still cause carbon footprints. So how can we reduce this? नहीं, रिन्यूएबल से कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं हो सकता है, और होता भी है तो कैसे, बहुत ही लिमिटेड. आप उसको कार्बन ऑफसेट, एक आजकल टर्म है, कार्बन ऑफसेट इज कि मैंने कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किया थ्रू आउट द डे. अगर मैं बात करूं, मैंने अपना गाड़ी चलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, अगर उसमें पावर आ रहा है थर्मल से, तो मैंने कार्बन फुटप्रिंट छोड़े. बट रिन्यूएबल एनर्जी पर से इज नॉट जनरेटिंग एनी कार्बन फुटप्रिंट्स. सोलर एनर्जी से कोई CO2 नहीं निकलता है, विंड एनर्जी से कोई CO2 नहीं निकलता है. सो रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट जनरेटिंग कार्बन फुटप्रिंट्स. इन फैक्ट इट इज मिटिगेटिंग कार्बन फुटप्रिंट्स. So next question is that how can we automate the renewable energy sources so that they demand less maintenance and work efficiently? देखिए, ऑटोमेशन आप किसी भी चीज का करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहला चीज क्या लगाना पड़ेगा? रिसोर्सेज, पैसा, ठीक है. आप रोबोटिक्स से उसका क्लीनिंग करवा लीजिए, तो आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा. ओके, नाउ देयर आर डबल एक्सिस सिस्टम्स ऑल्सो. वो क्या करेंगे, पूरा दिन आपका द वे सन विल कीप रोटेटिंग ना, तो उसमें एक रोटर लगा होता है, वो आपका एक्सिस चेंज करता जाएगा, आपका पैनल घूमता जाएगा. सो आपका स्टार्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट से एंड इट विल एंड अप इन साउथ वेस्ट. जैसे सूरजमुखी का पौधा होता था ना, वैसे ही वो करेगा, ठीक है. वो टेक्नोलॉजी वही है, रोटर लगा है, वो बिल्कुल धीरे 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 उसको उसी स्पीड से घुमाएगा कि वो थ्रू आउट द डे मैक्सिमम सनलाइट विल बी अवेलेबल ऑन इट. सो ऑटोमेशन, हर चीज का ऑटोमेशन का आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है. अगर आपने ऑटोमेशन के बगैर एक दिन में 1 किलोवाट पावर प्लांट से 5 यूनिट जनरेट किया है, ठीक है, और ऑटोमेशन के साथ 6 यूनिट जनरेट किया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है. वो एक एडिशनल यूनिट जनरेट करने के लिए कैन यू अफोर्ड दैट कॉस्ट? Okay. Sir, some students wrote that they need the more time from your side in the next presentation, that the presentation was very much informative. So they demanding that in future you also be there for with the another topic in the field of geothermal energy or such that. नॉट एन इशू एट ऑल. मैं अगली बार से बस ये जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कीप इट ऑन जूम और समथिंग, Okay, sir. जहाँ पे these kids are more comfortable in doing so, because WebEx, Cisco WebEx बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं. अगर आप डेटा भी उठा के देखेंगे ना, Yes, तो sir. Yes, इंडिया में 2 ही प्लेटफॉर्म्स पे काम हो रहा है, या तो जूम पे या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जरूरी नहीं है कि आप इसको वेब जैम से ही करें.
आप अपने आप से भी 45 मिनट्स का सेशन जूम का या 1 घंटे तक का टीम्स का क्रिएट कर सकते हैं. योर टेक्निकल टीम विल बी वेरी मच एफिशिएंट इन डूइंग सो. Okay, sir. We will यहाँ plan in पे the हम future. वीडियो ऑन करके वी कैन ऑल्सो सी द स्टूडेंट्स. और अगर ये इंटरेक्टिव रहेगा Yes, sir. तो in future also I would like to associate with you, but one way communication is not something which I like very much. Right, sir. So you have my contact coordinates. My Yes, email sir. ID is reflected on this thing. So if they want to write something, I'll be happy. I'll Okay, be sir. happy to connect with you guys. I'll be happy to connect with the youth. Right, Okay. sir. I may not be able to respond immediately. I may take some time, but I'll definitely respond to you guys. Okay. नेक्स्ट Yes, sir. सेशन आप इसी पे या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आप रख सकते हैं. ठीक है. Okay, sir. We will आई विल plan in the एसोसिएट, future. बट अगेन यू विल हैव टू एंश्योर दैट देयर इज गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स. हम Yes, sir. उसको जिस लैंग्वेज में ये चाहेंगे, इवन इफ दे वांट टू स्पीक इन हिंदी. देखिए, राजस्थानी में या मारवाड़ी में बोल नहीं सकता हूँ, बट हिंदी में आई एम कंफर्टेबल. Yes, sir. No तो issue, sir. हाँ, तो आप We will. स्टूडेंट्स को बात कर लीजिए वेन एवर दे आर कंफर्टेबल एंड दे वांट टू इंटरेक्ट. एंड आई एम नॉट डिमांडिंग दैट देयर शुड बी 150, 200 और 300 स्टूडेंट्स आल्सो. अगर 10-15 लोग भी हैं और एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है, Yes, sir. तो आई विल आल्सो फील गुड, यू गाइस आल्सो विल फील गुड. सो Okay, आई sir. डोंट माइंड. We will plan the session in future, sir, after discussing you. Okay, sir. Or suggest we are going to end this session. So thank you very much, sir, for this enlightening session, and we assure you that this session will provide an exposure to all the student participants in terms of enhancing their knowledge in the related domain. Also, thanks again for giving us valuable time for this power seminar. I'm also thankful to the ICT Academy for their efforts in organizing this power seminar for the students of Global Institute of Technology. Also, very special thanks to all precious student participants to make this power seminar meaningful. Thank you very much, sir. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Now, students can leave the platform. Thank you. May I also